My dear students, we all know that what are tenses? Present, past, future. We have read from our previous classes that what are the tense and what are the uses of tenses. In this chapter, in this video, we will discuss the present perfect tense and present perfect continuous tense. Where can we use the present perfect tense and present perfect continuous tense in our daily day-to-day life? What is the use of two kind of tenses? We used to learn so many times the present perfect has, have and has, have been, has, have and has, have been. What is the exact meaning? Where can we use in our life? Where can we use also in our spoken English? The present perfect and present perfect continuous. Okay, I have been to Delhi. I have been to Delhi and I have gone to Delhi. What is the difference between two sentences? इन दोनों वाक्यों के अंदर क्या फ़र्क है? हम शुरू से समझते आए हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ. I have taken food. I have been. I have been. What is I have been? What is the use of been over here in present perfect continuous tense? So in this video, we will discuss the present perfect and present perfect continuous tense. Where can we use the present perfect and present perfect continuous tense? I have written some examples for you. First of all, we have to read it. We will go through our examples to make them understand what is the main use of present perfect, how can we use the present perfect and present perfect continuous tense. So let's get started. Look at the first example. I have worked there for 10 years. I have worked there for 10 years. मैं वहां पर 10 साल काम कर चुका हूं. I have worked. What is which tense it is? I have worked. Present perfect tense. You know the formula has, have plus verb V3. Has, have plus V3. I have worked there for 10 years. मैं वहां 10 साल काम कर चुका हूं. Now, look at the second example. I have been working there for 10 years. I have been working here for 10 years. दोनों ही बातें पास्ट की है. दोनों ही बातें पास्ट की है. वो कह रहा है कि I have worked there for 10 years. I have worked there for 10 years. I have been working there for 10 years. Now, what is the main difference between two sentences? Now comes to the second example. I have seen the doctor. I have seen the doctor. मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूं. इसका मतलब ये हुआ कि मैं कभी पास्ट में डॉक्टर के पास गया था. I went to the doctor in past and the work has completed. I have seen the doctor. लेकिन आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, इफ यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक यू विल कम टू नो दैट आपको इस सेंटेंस में ऐसे लग रहा है कि विजिट एक हुई है. आई हैव सीन द डॉक्टर. हाउ मेनी टाइम? नो टाइम. टाइम का पता नहीं चल रहा है. आई हैव सीन द डॉक्टर. आई हैव सीन द डॉक्टर. आई हैव टेकन फूड. कितने टाइम? नो टाइम. कब? नो टाइम. पता नहीं. आई हैव सीन द डॉक्टर. मतलब You was there and now you are there. आपने इससे पहले एक काम किया, डॉक्टर को देखा. I have seen the doctor. It's supposed to tell only one visit. वो ये बताता है कि आपने डॉक्टर को सिर्फ एक बार देखा था. आपने डॉक्टर को एक बार चेकअप कराया है. Now comes to the second point. I have been seeing a doctor. I have been seeing a doctor. This is the present perfect continuous tense, my dear students. And what it shows, what it is showing that you may visit so many times. आप डॉक्टर को बहुत बार दिखा चुके हो. आप अभी यहां पे हो. आप अभी यहां पे हो. दिस इज प्रेजेंट. आपने पहले डॉक्टर को दिखाया था. आपने जब प्रेजेंट परफेक्ट में डॉक्टर को दिखाया था तो एक बार डॉक्टर को दिखाया. सी सपोज टू इट साउंड्स लाइक ओनली वन विजिट. ये आपको ये बताता है कि आपने एक विजिट की थी. लेकिन अब आप यहां पे हो, आपने डॉक्टर को हैव बीन सीइंग ए डॉक्टर. इसका मतलब जब आपने डॉक्टर को दिखाया था तब से आप
डॉक्टर के पास कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हो। आप डॉक्टर के पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार और अभी भी जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका जो काम हुआ वो खत्म हो गया है, हो सकता है कि एक बार हुआ हो, दो बार हुआ हो, एक बार की फीलिंग होती है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बात करते हैं कि आपने काम पहले कर तो लिया है, लेकिन आपने जब से किया है तब से लेकर आप उस काम को कई बार कर चुके हो या कई बार कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ कम्स टू द थर्ड एग्जांपल, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। ओके, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। व्हाट आई एम टेल यू, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूं। कितनी बार? पास्ट में ये काम हुआ था पर पता नहीं है कि कितनी बार हुआ और कब हुआ, टाइम तो बिल्कुल बताएगा ही नहीं है। पास्ट में ये काम हुआ था, आई हैव स्टडीड इंग्लिश हाउ मेनी टाइम्स, आई डोंट नो। व्हेन, आई डोंट नो, बट आई हैव स्टडीड इंग्लिश वंस, आई थिंक। ओके, तो वंस की फीलिंग आती है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, अब सुनते हैं अपन। नाउ कम्स टू द सेकंड एग्जांपल, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश। इट मीन्स मैंने आई वेंट टू स्टडी इंग्लिश इन द पास्ट, ओके, एंड राइट नाउ आई एम continuously studying English. I went to study in the past, but I am right now continuing by studying English. मैं पास्ट में कभी गया था लेकिन अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। I have been studying English. ठीक है, तो अभी भी वो काम मेरा कंटिन्यूस है, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई होप दैट यू स्टूडेंट्स will understand this difference between the present perfect and the present perfect continue. Now, in the concluding line, we can say that present perfect shows that subject is not doing something now. What I am saying to you, try to understand. Present perfect tense shows that subject is not doing something now, but did something in the past. प्रेजेंट परफेक्ट आपको यह बताता है कि जो सब्जेक्ट है, ये जो आई है, इसने कोई काम पास्ट में किया था लेकिन भैया अब नहीं कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको यह बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है कि सब्जेक्ट ने, आई ने, ही, शी, इट, नेम ने कोई काम पास्ट में किया था, लेकिन अब जब मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं तो उस समय उस काम को वो कर रहा है, उस काम को करते हुए कंटिन्यू है वो। ओके, जैसे मैंने बोला, आई हैव टेकन ऑनलाइन क्लासेस। आई हैव टेकन ऑनलाइन क्लासेस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाएगा, लास्ट 15 डेज से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। गॉट इट? समझ में आया? क्योंकि मैंने ये काम पास्ट में शुरू तो किया था, लेकिन ये काम मेरा अभी भी, मैं आपको बात कर रहा हूं तो चालू है। सो आई कैन से आई हैव टेकन, आई हैव बीन टेकिंग। ओके, आपके बारे में मैं सुन सकता हूं, जैसे आपने बोला कि हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो वी हैव रीड और वी हैव बीन रीडिंग। वी हैव रीड नहीं, तुम भी 10-15 दिन से पढ़ रहे हो। यू आर ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम द 10 to 15 days. So you will use I have been reading, I have been searching, I have been looking, I have been going, I have been dancing. So in this way we can use the present perfect and the present perfect continuous tense. I hope, my dear students, now this chapter is completely clear for you. You will not stammer again in two tenses. Okay, let's go ahead. What is the contraction? आप इसमें contraction का भी यूज कर सकते हैं। contraction कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। It has been raining. Okay, it has rained. बारिश हो चुकी है। इसका मतलब काम चालू हुआ था, बारिश चालू हुई थी, आज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। परसों या उससे पहले बारिश चालू हुई थी। It has rained. खत्म हो गई वो काम, एक बार हो गया, खत्म हो गया। It has been raining. अभी तक it has been raining lately. अभी तक ये काम चालू है तो has been लगा दिया मैंने। लेकिन जब it has आप यूज करते हो
तो इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स। क्या होता है? इट्स लगाएंगे। हैज को इट के अंदर डाल देते हैं, हैज को इट के अंदर डाल देते हैं और वो हो जाएगा इट्स। लेकिन सम पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग द मिस्टेक्स in this topic right over here, that they understand they means to add its. This is not its, my dear student, this is not its, because you are asking about the present perfect and present perfect continuous. So this is the reduction of the it has and have. Has and have जब it के अंदर मिलेगा तो इसका चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला we have been learning English, वी हैव, हम दोनों इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो वी हैव बीन, तो वी के साथ में ये मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चैप्टर ऑन दिस बोर्ड। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सो लॉन्ग, ओके, फॉर लेटली। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन याद करेंगे। आई होप दैट नाउ इट इज गोइंग टू बी क्लियर नाउ। सो हम कल इससे अलग कुछ और चैप्टर लेंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू गिव ए प्रॉपर प्लेस इन योर स्पोकन इंग्लिश। हम कोरोना वायरस से लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं? क्या बोलेंगे इसको? वी हैव फॉट विद कोरोना वायरस। नहीं, हमने लड़ना चालू किया था, काम खत्म थोड़ी हो गया है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी भी लड़ रहे हैं। वी हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, वी हैव बीन, ये बनाया है मैंने, इट इज फॉर यू। वी हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम कोरोना वायरस एंड ऑल्सो यू had been fighting from the coronavirus. We all Indians, the whole world had been fighting from the coronavirus. That's it. Stay safe from this virus. Be healthy. Keep social distancing. Thank you. Goodbye.